Praise the Lord to everyone. Sabiko Jemesi. First of all, I would like to thank God in this morning for giving us this wonderful day again to worship Him and to praise Him in the middle of the lockdown, and for protecting us and for loving us endlessly. A very good morning to you all, and I welcome each and every members of the Battle family, and I welcome those who are watching this video. And before we begin with the service, I will read from the scripture, Psalms chapter 18 verse 2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and horn of my salvation, my stronghold. Now let us bow our head and close our eyes, pray to God. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day again and for giving us this opportunity to worship you and to praise you. Lord, you are worthy to receive all the glory and the honor. You are King of kings and Lord of lords. Lord Jesus, I thank for all the members of the Battle family. Lord Jesus, bless them, Lord, and protect them, Lord Jesus. Lord, we are getting this kind of opportunity to worship you by using the modern technologies, Lord. It's not because of our good works, but because of your unconditional love and mercy on us, we are getting this kind of opportunity. Lord, I pray for this service. I prayed for today's service. I prayed for Brother Pranab, who will be singing a song for you. And I prayed for Brother Bunny, who will be leading us in worship. And even I prayed for Pastor Arpan, who will be sharing your words. Lord Jesus, speak to us through him, Lord. Fill him with the Holy Spirit, Lord Jesus. And even I pray for all the listeners, Lord. Fill us with the Holy Spirit and fill our hearts with your words, Lord. Lord Jesus, we need your presence from the beginning till the end. Lord, I surrender everything into your hand. I prayed all this in the sweet name of Jesus. Amen. We have a special number by Brother Pranab, and after that Brother Bunny will lead us in worship, and after that Pastor Arpan will share the word of God and he will conclude the service. And now I give this time to Brother Pranab. Thank you. Took a breath, you break to life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, touched the life I live. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.
mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no lie you won't kick down, coming after me. सभी को जय मसीह। आज के सुंदर समय पे एक हफ्ते बाद फिर से हम सब फिर से मिले हैं। प्रभु की योजना के अनुसार आज हम सब एक साथ जुट होकर स्तुति आराधना के लिए ना अपने परिवार को वीडियो के द्वारा ऑनलाइन सर्विस में हम देख पा रहे हैं। आइए अभी हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने हम सबको दिया। परमेश्वर पिता धन्यवाद, हालेलुया पिता, तेरी स्तुति आराधना करने के योग्य तूने हम सबको बनाया। परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, तू वो प्रभु है जिसने मौत को भी हरा के आया। परमेश्वर प्रभु, तू हमेशा एक विजय परमेश्वर है प्रभु, तू हमेशा से विजय हुआ है परमेश्वर प्रभु। और हम ये गीत हम तेरे नाम पे हम गाते हैं परमेश्वर पिता। मसीहा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, देखो मेरा मसीहा विजय हुआ। मौत को भी तूने हराया, देखो कुछ भी रोक नहीं पाया। आगमवाणी पूरा कराया, देखो वचन को सत्य है बताया। मौत को भी तूने हराया, देखो कुछ भी रोक नहीं पाया। आगमवाणी पूरा कराया, देखो वचन को सत्य है बताया। विजय हुआ, विजय हुआ, देखो मेरा मसीहा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, देखो मेरा मसीहा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, देखो मेरा मसीहा विजय हुआ। अब अपने लफ्ज़ से तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तू हमारा यीशुआ, हम तेरे यीशु। हालेलुया।
उठाकर तेरा नाम गाऊं, लफ्जों से तेरे मैं गीत गाऊं, आवाज उठाकर तेरा नाम गाऊं। तू मेरा मैं तेरा यीशुआ, तू मेरा मैं तेरा यीशुआ। मन मेरा सोचे तेरे बारे में यीशुआ, मन मेरा ढूंढे तुझको ही ढूंढे यीशुआ। तू मेरा मैं तेरा यीशुआ, तू मेरा मैं तेरा यीशुआ। तेरे भवन में मैं आना चाहूं यीशुआ, तेरे भवन में मैं रहना चाहूं यीशुआ। तू मेरा मैं तेरा यीशुआ, तू मेरा मैं तेरा यीशुआ। धन्यवाद यीशु, हम सब तेरे हैं प्रभु, तू हमारा है पिता। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हालेलुया। तेरी उपस्थिति सदा सर्वदा हमारे साथ में रहे। ये सारी विनती प्रार्थना मांगते तेरे उच्च पवित्र नाम में, यीशु ख्रिस्त के नाम में। आमीन, आमीन। जय मसीह। सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह। फिर से एक हफ्ते के बाद परमेश्वर के वचन लेके आना बहुत ही आनंद की बात है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है, अपने अपने घरों में है। हम लोग मुश्किल तकलीफ के समय में है, पर ये समय के बीच में भी प्रभु आप पर मुझे बहुत सारे बातें को सिखा रहे हैं। उनको विश्वास करने का बाद, प्रार्थना में आगे बढ़ने का बात और परमेश्वर के वचन में समय बिताने के लिए प्रभु आप पर मुझे सिखा रहे हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। आज का जो वचन का शीर्षक है वो है योर बॉडी हिज टेम्पल। आप और मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे सब लोग अपने शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर कुछ शरीर में कुछ चोट हो, शरीर में कुछ बीमार हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वो बीमार को, वो चोट को ठीक करने के लिए हम लोग सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बहुत लोग सुबह सुबह उठ के वो लोग जॉगिंग में जाते हैं, बहुत लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत लोग जिम में जाते हैं, बहुत लोग अच्छा डाइट खाते हैं, वो लोग डाइट मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बहुत लोग अपने आपको खुद को हैंडसम और ब्यूटीफुल देखने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे अच्छे क्रीम, अच्छे अच्छे हेयर ऑयल और बहुत ज़्यादा चीज़, आजकल बहुत नया नया ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकला हुआ है। तो हाँ, वो लोग सब ये सब प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, वो लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने शरीर को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और ये संसार में एक स्लोगन है, बहुत फेमस स्लोगन, वो क्या है, मेरा शरीर मेरा मर्जी ना, माई लाइफ माई विश। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड टीच यू एंड मी? जब आप और हम प्रभु को विश्वास करते हैं, जब आप और हम अपने पापों से हम लोग पश्चाताप करके हम परमेश्वर के पीछे में हम चलते हैं, तो आप और मेरे जीवन में कुछ होता है, आप और मेरा शरीर में कुछ होता है। वो क्या है पता है? कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। आज का जो टेक्स्ट है, बाइबल का जो टेक्स्ट है, वो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20 है। पहला कोरिन्थी 6 का 19 और 20 है। और इसका मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको देना चाहूंगा। ये समय में जब पौलुस ये चिट्ठी को लिख रहा था कोरिन्थी का चर्च में, तब कोरिन्थी में बहुत ज्यादा समस्या था। नंबर 1 समस्या क्या था कि वहां पे व्यभिचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और व्यभिचार बढ़ने के कारण की वजह से भी पौल ने ये चिट्ठी लिखा है। और दूसरा वहां पे क्या हो रहा था, दूसरा समस्या ये था कि मंडली में जो भी समस्या हो रहा है, उन लोग के बीच में जो भी समस्या हो रहा है, वो समस्या लेके वो लोग कहाँ पे जा रहा था? वो कोर्ट में जा रहा था उसको न्याय मांगने के लिए। और पौलुस का मेन इंटेंशन क्या है कि मंडली में परमेश्वर का दास लोग है, उन लोग को शेयर करो, वो लोग तुम्हें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, क्या करना है, सोल्यूशन मंडली के लोग देगा। तुम लोग क्यों बाहर में जाके अपने आप का बेइज्जत करते हो ना? तो ये दिमाग में रखते हुए ये चिट्ठी को लिखा गया है। पर मैं सब नहीं पढ़ूंगा, मैं ओनली 19 एंड 26 का कंक्लूजन में पौल क्या बोलता है, बेविचार से अलग रहो बोलने के बाद देखिए पौलुस क्या बोलता है। डू यू नॉट नो that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. और उसके बाद पौलुस क्या बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो अभी, तुम तो किसके हो? परमेश्वर के हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें मूल्य चुका के तुम्हें खरीदा है। और वो मूल्य क्या है कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु का बलिदान से आप और मेरा शरीर को क्या किया है? परमेश्वर ने खरीदा है। इसीलिए क्या करो? परमेश्वर का महिमा करो। कहां पे? आप और मेरा शरीर में। आमीन। बहुत बार हम लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आई ग्लोरीफाई योर नेम, प्रभु मैं आपके नाम को मैं महिमा करना चाहता हूँ, और हमारा शरीर से हम महिमा नहीं दे रहा है। पर यहाँ पे वचन में पौलुस क्या बोलता है? प्रभु को महिमा देना है तो कहाँ पे दो? अपना शरीर में दो। आमीन। मैं बहुत ही जल्दी आपको मैं 3 चीज मैं रखना चाहूंगा। 3 चीज हम वचन से हम सीख सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, आपके पास पेन डायरी है तो आप लिख सकते हैं, बाइबल का वर्स को आप कोट कर सकते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19-20, और उसके बाद वचन खत्म होने के बाद आप उसको मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आपका शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। आपको फर्स्ट थिंग जानना क्या जरूरी है कि मंदिर क्या है? व्हाट इज अ टेम्पल? हम लोग को बाइबल में पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो मंदिर ऐसा चीज है जो बहुत ही पवित्र है। पुराने नियम का मंदिर में साल में एक बार खाली प्रधान पुजारी को महापवित्र स्थान में जाने का परमिशन दिया जाता था। प्रियो, साल में एक बार खाली, क्योंकि वो जगह इतना महापवित्र है कि जब वो प्रधान पुजारी साल में एक बार जाता था, उनका पैर में रस्सी से बांध देता था, क्योंकि अगर उनका जीवन में कुछ पाप है, खोट है, तो वो पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति में वो क्या हो जाता था? वो मर जाता था। और मरा हुआ आदमी को लेने के लिए कौन जाएगा? जो भी जाएगा वो भी मर जाएगा। इसलिए रस्सी से क्या करता था? उसको टांगता था। इतना ज्यादा पवित्र। अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने छोटा डिटेल राजा सोलोमन को दिया। इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने ये मंदिर बनाया। प्रियो, क्यों? क्योंकि वो मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। गॉड्स प्रेजेंस ड्वेल्ड इन द टेम्पल। मंदिर ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए खाली ऐसे एक जगह नहीं था। मंदिर में क्या था? परमेश्वर का उपस्थिति था। जो परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर कहां पे रहता था? वो मंदिर में उनका उपस्थिति वो देता था।
और जब राजा सोलोमन ने ये मंदिर को बना लिया, जब उन्होंने डेडिकेट किया, जब उन्होंने ओपनिंग किया, मैं वर्सेस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत निकल जाएगा, पर आप लिख सकते हैं 2 Chronicles चैप्टर 7 वर्स 1 to 3, उसके बाद फिर 12 to 15। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब डेडिकेशन का समय था तब क्या हुआ, उन्होंने कुछ चीज परमेश्वर को बलिदान किया था, होम बलि, और उसके बाद कुछ ऑफरिंग्स परमेश्वर को बलिदान किया था। वो समय में परमेश्वर का आग स्वर्ग से आगे क्या किया, वो बलिदान को, वो सैक्रिफाइस को क्या किया, प्रभु ने कंज्यूम कर लिया, प्रभु ने ले लिया। और बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का उपस्थिति पूरा मंदिर में भर गया, और पुजारी लोग भी मंदिर के अंदर में घुस नहीं सका क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति वो मंदिर में इतना ज्यादा था। और सब लोग, इजरायली लोग जितने भी वहां पे आए थे, वो लोग क्या किया, वो लोग अपने घुटने में होके परमेश्वर का दंडवत किया, परमेश्वर को आराधना किया, क्योंकि वो मंदिर में क्या था, परमेश्वर का उपस्थिति आया था। उसके बाद थोड़ा 12 से आप 15 तक अगर आप देखेंगे, तब परमेश्वर राजा सोलोमन को बोलता है कि मैंने तुम्हारा प्रार्थना को सुन लिया है, तुम्हारा भक्ति को मैंने ग्रहण कर लिया है। और प्रभु बोलता है कि अभी जब भी संसार में मैं बीमारी आता है, संसार में जब भी कुछ घटना होता है, तब अगर मेरे बुलाए हुए लोग अपने आप को नम्र करते हैं, अपने खराब कामों से वो छोड़ के मेरे उपस्थिति में आता है, तो मैं क्या करूंगा, उनके प्रार्थना को सुन के मैं क्या करूंगा, उनका भूमि को मैं चंगा करूंगा बोल के बाइबल में ये प्रॉमिस दिया गया है प्रियो। उसके बाद अंतिम में प्रभु क्या बोलता है, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये यहाँ पे मेरा उपस्थिति है बोल के प्रभु बोलता है। तो आप और मुझे जानना जरूरी क्या है कि मंदिर में कौन रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति पुराने नियम में। पर जब प्रभु यीशु कलवरी क्रूस में गया प्रियो, तब वो मंदिर का पर्दा जो था, जो पवित्र और महापवित्र स्थान को वो भाग करता था, वो पर्दा ऊपर से नीचे क्या हो गया, टूट गया। और वो समय के बाद परमेश्वर का उपस्थिति एक बिल्डिंग में, एक मंदिर में नहीं, परंतु आप पर मेरा शरीर में रहने लगा। आमीन। आज मंदिर एक चर्च नहीं है, आज एक मंदिर एक बिल्डिंग नहीं है, आज मंदिर आप पर मेरा शरीर है, और आप पर मेरा शरीर में परमेश्वर का उपस्थिति, पवित्र आत्मा आप पर मेरा शरीर में रहता है। God has started to live, the Holy Spirit has started to live in your body। देखिए इतना आनंद की बात है कि आप पर मेरा शरीर में कौन रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। इसलिए बी केयरफुल वेयर यू गो, आप कहाँ पे जाता है आपको ध्यान रखना है। आप अपने शरीर से क्या करते हैं आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी चीज में आप कैसे रिएक्ट करते हैं आप उसको ध्यान रखना है। आप अपने दिमाग से क्या सोचते हैं उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका शरीर एक ऑर्डिनरी शरीर नहीं रहा। आपका शरीर अभी क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा आप और मेरा शरीर में रहते हैं। सेकेंड थिंग, द होली स्पिरिट लिव्स विद इन हिज टेम्पल। पवित्र आत्मा क्या करता है, उनका मंदिर में वास करता है। और अभी हम लोग ने देखा कि वो मंदिर क्या है, आप और मेरा शरीर है। और आप और मेरा शरीर में अभी कौन वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। आप और मेरा शरीर में पवित्र आत्मा हिलडुल करता है। आपके अंदर में कौन है, मेरे अंदर में कौन है, हमारे अंदर में कौन है, परमेश्वर की आत्मा है। कैसे परमेश्वर की आत्मा कैसे रह सकता है ऐसा शरीर में। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जानना क्या जरूरी है कि कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा आप और मेरा शरीर में रह पा रहे हैं। क्योंकि पहले में क्या होता था, आप और मेरा पाप की वजह से परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में नहीं आ सकते थे। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पवित्र है और आप और मेरा शरीर अपवित्र पापी है। और पवित्र आत्मा कभी भी अपवित्रता के साथ मेल नहीं खाता है। ओके, तो इसीलिए पवित्र आत्मा आप और मेरा अपवित्र शरीर के साथ वास नहीं कर सकते।
पर जब प्रभु यीशु कलवरी क्रूस में मरा आप और मेरा पापों के लिए, तब प्रभु ने आपका पनिशमेंट, मेरा पनिशमेंट, आपका दोष, मेरा दोष, आपका पाप, मेरा पाप सब लेके प्रभु यीशु कलवरी क्रूस में मर गया और आप और मुझे क्या कर दिया? क्षमा करके पाप रहित बना दिया। आमीन, सिनलेस। इसीलिए दिस इज द रीजन आज पवित्र आत्मा आप और मेरा शरीर में क्या कर रहा है? वास कर रहा है। देखिए ये प्रॉमिस, अगर आप यूहन्ना के पुस्तक में, मैं बहुत जल्दी से मैं पढ़ूंगा और जॉन आप मार्क कर सकते हैं, जॉन चैप्टर 14 में अगर आप देखेंगे 14 के 15 और 16 में प्रभु यीशु खुद ये बात को प्रॉमिस करता है। प्रभु यीशु बोलता है कि एंड आई विल प्रे द फादर, ही विल गिव यू अनदर हेल्पर that may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him. यहाँ पे प्रभु यीशु बोलता है मेरा पिता को मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा पिता क्या दे? तुम्हें पवित्र आत्मा दे जो तुम्हारे अंदर में रहेगा, who will abide in you. परमेश्वर खुद बोलता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा वो क्या करेगा? आप और मेरा शरीर के अंदर में वो क्या करेगा? वास करेगा। और प्रेरित में अगर आप देखेंगे, प्रेरित 2 का 1 से 4 तक उसमें फुलफिल हुआ है जो प्रभु यीशु ने बोला है। तो बाइबल में लिखा गया जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पे आया, पवित्र आत्मा आया और सब लोग अन्य भाषा में बोलने लग गया। अगर आप उसके बाद प्रेरित 4 के 31 में भी देखेंगे कि वहां पे जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा आया और सब लोग अन्य भाषा में बोलने लग गया और परमेश्वर का वचन वो लोग साहसी रूप से वो लोग प्रचार करने लग गया। ये सब कैसे हुआ? ये सब पवित्र आत्मा उनके शरीर में जब वास करने लग गया तब ये सब चीज क्या हो गया? होने लग गया। आमीन। आज आपको जानना है कि आपका शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है। अगर आपने प्रभु यीशु को विश्वास किया है, अपने पापों से आपने पश्चाताप किया है और आपने अपना जीवन प्रभु के रास्ता में दिया है प्रियो, तो आपके शरीर में आज पवित्र आत्मा वास करे। और जब पवित्र आत्मा आपके शरीर में वास करता है तो आपके जीवन में प्रभु शक्ति देगा। वो आपका शारीरिक शक्ति नहीं है, वो आत्मा का शक्ति है। आपका जीवन ख्रिस्तीय केंद्रित जीवन होगा। योर लाइफ विल बी क्राइस्ट सेंटर्ड। आप जो भी करेंगे आप प्रभु यीशु के बारे में सोचेंगे। और आप और मुझे ये भी जानना जरूरी है कि जब हम लोग कुछ भी गलत करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, वास कर रहे, अगर आप लोग पाप करते हैं तो हम लोग पवित्र आत्मा को रुलाता है। ये बाइबल में भी लिखा गया है। आमीन। तो सेकंड पॉइंट आपको जानना क्या जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर में पवित्र आत्मा वास करते हैं। आमीन। और लास्ट पॉइंट, द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट इज टू ग्लोरीफाई गॉड इन हिज टेम्पल। पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है? उनका मंदिर में जो आप और मेरा शरीर है उनमें परमेश्वर को महिमा देना। वाव! आप और मेरा शरीर के अंदर में पवित्र आत्मा किसको महिमा देना चाहता है? परमेश्वर को। प्रियो, अगर आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो आपके पास आपके शरीर है, आप अपने शरीर से परमेश्वर को आप महिमा दे सकते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है यहाँ पे। जब स्टेफन को मार रहे थे, आप प्रेरित के पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे 7, 6, 7, 8 को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब स्टेफन को वो मार रहे थे पत्थर लेके, तब स्टेफन ने क्या बोला कि प्रभु मेरा शरीर में आपको मैं दे देता हूं और इन सभी को क्या करो? क्षमा करो। और वो दृश्य पौलुस देख रहा था। स्टेफन क्या कर रहा था? अपने शरीर में वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था। क्या आपने अपने शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा दिया है? क्या आपका शरीर के द्वारा आपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई किया है? क्योंकि पवित्र आत्मा का उद्देश्य यही है कि आप और मेरा शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। आप और मुझे इसीलिए बनाया गया था। वी वर क्रिएटेड टू ग्लोरीफाई गॉड। आप और मेरा सृष्टि ही परमेश्वर को महिमा देने के लिए हुआ था प्रियो।
आप पौलुस का लेटर को भी अगर आप देखेंगे, पौलुस का जीवन को भी अगर आप देखेंगे, तो पौलुस ने परमेश्वर को अपने शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा किया था। जब उसको मारा गया था, जब उसको टॉर्चर किया गया था, तब अपना शरीर से वो क्या कर रहा था? परमेश्वर को महिमा दे रहा था। खुशी का बात यह है कि गॉड रिसीव्स ग्लोरी इन योर बॉडी, इन योर स्पिरिट। प्रभु आपके शरीर और आत्मा के द्वारा प्रभु क्या करता है? महिमा लेते हैं प्रियो। तो मैं आपको यही इंकरेज करना चाहूंगा आज के प्रीचिंग के द्वारा कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ग्लोरीफाई गॉड, प्रभु को महिमा दीजिए। आमीन। हम लोग ने बहुत शॉर्ट में हम लोग ने 3 पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किया। हम लोग ने ये डिस्कस किया कि आपका शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपका शरीर में पवित्र आत्मा वास करते हैं, और पवित्र आत्मा का उद्देश्य ये है कि आपका शरीर के द्वारा किसका महिमा हो? परमेश्वर का महिमा हो। आमीन। और मैं अंतिम में, मैं कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि सरेंडर योर बॉडी टू गॉड। आपका शरीर को परमेश्वर को अर्पण कीजिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करने में मजा आता है, ये नहीं, पर परमेश्वर को क्या चाहिए। व्हाट डज गॉड डिलाइट इन? एंड सेकंड थिंग इज ग्लोरीफाई गॉड एवरी डे। प्रत्येक दिन आप इसके बारे में सोचिए। प्रत्येक दिन आपके पास ये शरीर है, आप बोलिए प्रभु हाउ कैन आई ग्लोरीफाई यू? मैं क्या करके मैं आपके महिमा कर सकता हूँ? एंड गॉड विल श्योरली रिवील टू यू द बेस्ट वे दैट यू कैन ग्लोरीफाई गॉड। प्रभु आपको प्रकाश देगा कैसे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हमारा शरीर के द्वारा हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। लॉर्ड वी वांट टू ग्लोरीफाई यू इन आवर बॉडी। प्रभु हमारा शरीर आपके मंदिर है प्रभु, और ये मंदिर में केवल आपकी महिमा होगा। हमें स्ट्रेंथ दे प्रभु। हम सब चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के उच्च और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।